خانپور کے علاقہ کوٹلا پٹھان میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک، 2 موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ پولیس کے مطابق تھانہ صدر کی حدود ظاہر پیر روڈ سے 4 ڈاکو شہری سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ڈاکوؤں کا تعاقب کیا تو انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ ملزمان کے قبضے سے چھینا ہوا موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ حافظ آباد میں سرگودا روڈ پر ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا، نامعلوم موٹر سائیکل سوار موقع پر جاں بحق۔ پولیس نے ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ ریسکیو کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اوکاڑا پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، بڑی کارروائی کرتے ہوئے 7 رکنی بین الضلاعی خطرناک ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار گروہ کی شناخت مدثری نول ڈکیت گینگ سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق ڈکیت گینگ دھند کے دوران ضلع اوکاڑا کے مضافات لاہور اور قصور میں وارداتیں کرتے تھے اور مزاحمت کرنے پر شہریوں پر فائرنگ کر کے ان کو زخمی بھی کر دیتے تھے۔ تھانہ الہ آباد پولیس کی کامیاب کارروائی، ڈکیتی اور رہزانی کی متعدد سنگین وارداتوں میں ملوث اسماعیل ڈکیت گینگ کے 2 کارندے گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے مکئی سے لوڈر ٹرک، لاکھوں روپے نقدی اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے 5 رکنی ڈکیت گینگ تشکیل دے رکھا تھا جو ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران فصل سے بھرا ٹرک چھین لیتے تھے۔ عمر کوٹ میں آٹا بحران اور مہنگائی کے خلاف پاکستان کولی اتحاد کی جانب سے احتجاجی ریلی، مظاہرین کا اللہ والا چوک پر دھرنا، ٹریفک جام ہونے سے گاڑیوں کی لمبی لائن لگ گئیں۔ مظاہرین کا سندھ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے کہنا تھا کہ غریب مہنگائی کی چکی میں پہلے ہی پس رہا تھا، اب آٹے کا بحران پیدا کر کے مزدور طبقے کو فاقہ کشی پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ اور تاریخی شہر بھیرا کا اہم ثقافتی ورثہ شیر شاہ سوری جامع مسجد زب و حالی کا شکار، حالیہ کروڑوں کی لاگت سے تعمیر و مرمت کا کیا گیا کام چند ماہ میں ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق جامع مسجد کی تزئین و آرائش اور تعمیر و مرمت پر 4 کروڑ 35 لاکھ روپے سے لاگت آئی، لیکن چند ہی ماہ کے اندر نقش و نگار کی چمک دھمک ختم ہو گئی اور جگہ جگہ سے اکھڑنا شروع ہو گئی، جبکہ دیواروں پر دراریں پڑ چکی ہیں۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر منہاس۔ میں ہوں مہرونسا اقبال۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، نیوز بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ خانپور کے علاقہ کوٹلا پٹھان میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک، 2 موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کے مطابق تھانہ صدر کی حدود ظاہر پیر روڈ سے 4 ڈاکو شہری سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ڈاکوؤں کا تعاقب کیا تو انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ میں زاہد گپانگ اور ظفری چانڈیو نامی ڈاکو موقع پر ہلاک ہو گئے۔ ملزمان کے قبضے سے چھینا ہوا موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ حافظ آباد میں سرگودا روڈ پر ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا، نامعلوم موٹر سائیکل سوار موقع پر جاں بحق۔ پولیس نے ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ ریسکیو کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
اوکاڑا پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، بڑی کارروائی کرتے ہوئے 7 رکنی بین الاضلاعی خطرناک ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار گروہ کی شناخت مدثر عرف مدثری نوول ڈکیت گینگ سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق ڈکیت گینگ دھن کے دوران ضلع اوکاڑا کے مضافات لاہور اور قصور میں وارداتیں کرتے تھے اور مزاحمت کرنے پر شہریوں پر فائرنگ کر کے ان کو زخمی بھی کر دیتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے ناجائز اسلحہ، نقدی اور مال مسروقہ برآمد کیا گیا۔ ملزمان نے دوران تفتیش متعدد سنگین وارداتوں کا انکشاف بھی کیا ہے۔ ملزمان پنجاب کے متعدد اضلاع میں پولیس کو مطلوب تھے۔ دوسری طرف تھانہ الہٰباد پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی اور راہزنی کی متعدد سنگین وارداتوں میں ملوث اسماعیل ڈکیت گینگ کے 2 کارندے گرفتار کر لیے۔ ملزمان کے قبضے سے مکئی سے لوڈر ٹرک، لاکھوں روپے نقدی اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے 5 رکنی ڈکیت گینگ تشکیل دے رکھا تھا جو ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران فصل سے بھرا ٹرک چھین لیتے تھے۔ تاہم ملزمان سے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ شورکوٹ میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ۔ ملتان روڈ پر 3 نامعلوم ڈاکو نے شہریوں سے موبائل فون اور لاکھوں روپے نقدی چھین لی ہے۔ ڈاکو دن دہاڑے مقامی میڈیکل سٹور کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے کی ادویات اور رقم، جبکہ تھانہ مریام والا کے علاقے میں کریانہ سٹور سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان چوری کر لیا گیا۔ واقعات کے خلاف شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر سوات جنید خان کی خصوصی ہدایت پر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر محمد عامر نے غیر قانونی لاؤڈ سپیکر کے استعمال کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے متعدد گوشت فروشوں سے لاؤڈ سپیکر ضبط کر لیے اور متعدد کو وارننگ جاری کر دی۔ اس موقع پر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر محمد عامر کا کہنا تھا کہ لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، مرتکب افراد کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ عارف والا پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ 2 مختلف مقامات پر شراب کشید کرنے والی چالو بھٹیاں برآمد کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رضا زیدی کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پاک پتن کے احکامات پر سرکل عارف والا میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری۔ تھانہ احمد یار کے اے ایس آئی ظفر اقبال کی ٹیم نے خفیہ اطلاع پر جمن شاہ کے علاقہ میں 2 مختلف مقامات پر چھاپہ مار کر دیسی شراب کشید کرنے والی چالو بھٹی سمیت ملزم بھی گرفتار کر لیے۔ اعجاز احمد نامی ملزم سے 18 لیٹر شراب جبکہ رفیق نامی ملزم سے 20 لیٹر شراب برآمد۔ الگ الگ مقدمات درج کر دیے۔ رضا زیدی، کوہ نور ٹی وی، عارف والا۔ رحیم یار خان میں تھانہ سٹی خانپور پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ منشیات فروش گرفتار کر کے 155 بوتل ولایتی شراب برآمد کر لی گئی ہے۔ گرفتار ملزم کی شناخت ناصر مختار عرف جگنو کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ اس کے باقی 2 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم لاہور سمیت مختلف علاقوں میں منشیات سمگل کرتا تھا۔ اسلام آباد کی اہم شاہراہ آپارا کمیونٹی سینٹر روڈ پر تجاوزات کی بھرمار، ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنی رپورٹر سونیا ملک کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اپارا کمیونٹی سینٹر روڈ کے اوپر غیر قانونی تجاوزات کی بھرمار، جس پر سی ڈی اے بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ غیر قانونی تجاوزات کے باعث روڈ بلاک اور ٹریفک میں بھی رکاوٹ، جس سے اسلام آباد جیسے شہر میں بھی پنڈی لنڈا بازار کا منظر پیش کرنے لگا۔ جب پبلک ریلیشن آفیسر سی ڈی اے سے موقف لینے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا، جبکہ ٹریفک پولیس بھی خود کو غیر جانبدار کہنے لگے، جبکہ عام عوام کا اس پر کہنا تھا کہ دیکھیں جی، ہم یہاں کے رہائشی ہیں اور یہ ہمارے لیے اتنی بڑی پرابلم بنی ہوئی ہے۔ یہ سارے انہوں نے روڈ بلاک کیا ہوا ہے۔ یہ سی ڈی اے والے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، ملک میں حالات کیا چل رہے ہیں، دہشت گردی کی پوزیشن بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ چھوٹی سی کوئی کھڑے ہو جائیں، سی ڈی اے والے نہیں کرنے تھے، انہوں نے پورا یہ روڈ بلاک کیا ہوا ہے۔ ہم جب گاڑیوں پہ یہاں سے گزرتے ہیں تو یہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی عورت چلتے ہوئے روڈ پہ آ جاتی ہے، کوئی مرد آ جاتا ہے، کوئی دوسری گاڑی ٹکرانے لگتی ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے۔
اور सी डी ए वालों ने जब ऑपरेशन करना होता है तो वो इस तरह करते हैं कि इनको बता देते हैं पहले, और ये सारे लोग हमारी गलियों में घुस आते हैं। वो एक हमारे लिए लाजा अजाब होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जो है ना सी डी ए की जो नाअहली है या सी डी ए की मिली भगत है, और ये हमारे लिए इन्होंने एक जनरल पब्लिक के लिए अजाब बनाया हुआ है। पे जितना पीछे मेरे आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा ऐसा बना दिया इन्होंने इस्लामाबाद को जैसा राजा बाजार है। इसमें कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी वो मिले हुए हैं, हो ही नहीं सकता कि एक छोटी सी भी रेडी लगे और वो जनाब अली उसको नहीं रुकने देते। ये इनसे सबसे पैसे लेते हैं, ये भी गरीब हैं, अपनी बेरोज़गारी है बहुत ज़्यादा, मुल्क में हालात ज़्यादा ख़राब हैं और ये अपना कमाते हैं। ये उनसे 500-500 रोज़ के या 400 रुपये रोज़ के लेके जाते हैं। फिर वो कहते हैं सबूत क्या है? पूरा राजा बाजार बना हुआ है, नमक मंडी, ये पिंडी, ये लग ही नहीं रहा कि इस जगह को अगर देखें कि ये कैपिटल है। शहर इक़्तिदार जैसे अहम शहर में इस संगीन मसले पर CDA का खामोश रहना भी एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ सोनिया मलिक, कोहिनूर न्यूज़। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। कब्जे से डकैतियों में इस्तेमाल होने वाला चोरी का मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। अब बात करते हैं आटे की। तो चोनिया में इंतजामिया सस्ता आटा शहरियों को फराहम करने की बजाय ब्लैक में फरोख्त करने में मसरूफ। तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान भर की तरह तहसील चूनिया में छांगा मांगा, चूनिया, इलाहाबाद और तलवंडी में भी आटे की शदीद किल्लत से जहां शहरी शदीद परेशान हैं, वहां असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया की नाअहली के बायस फूड इंस्पेक्टर हुकूमत पंजाब की जानिब से अवाम को मिलने वाला सस्ता आटा ब्लैक में फरोख्त करने में मसरूफ हैं। एक तरफ शहरियों के लिए सर्द मौसम में घंटों लंबी कतारों में खड़े होकर हाथ में पैसे पकड़े शनाख्ती कार्ड दिखाकर आटे के एक तोड़े का हसूल इंतहाई मुश्किल है, तो दूसरी जानिब इंतज़ामिया का हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों को मिलने वाला सस्ता आटा वाफर मिकदार में मुख्तलिफ होटलों पर ब्लैक में फ़रोख्त करना आए रोज़ का मामूल है। आटे की ब्लैक में फ़रोख्त के ज़रिए फूड इंस्पेक्टर और इंतज़ामिया ज़ाती कमाइयों को टॉप गियर लगाकर मुश्किलात में घिरे शहरियों को मज़ीद परेशान करने का सबब बन रही है। तहसील चूनिया में आटे की ब्लैक में फ़रोख्त में मुलव्वस इंतज़ामिया के खिलाफ शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन बूटा जेट के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर न्यूज़, चूनिया। अब बात करें महंगाई की, तो भवाना और गिरदोनवा में चिकन और आटे की कीमतें आसमान को छूने लगी। सब्जियां और मसाला जात भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगे। मजीद जानते हैं मलिक जाफिर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भवाना चिकन और आटा की कीमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके साथ साथ सब्जियों, सब्ज मसाला जात की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है। भवाना और गिरदोनवा में चिकन की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। शहरी इलाकों में चिकन 570 रुपये जबकि देही इलाकों में 600 रुपये फी किलोग्राम तक फ़रोख्त होने लगा है, जबकि चक्की का आटा 140 रुपये से लेकर 160 रुपये तक फ़रोख्त होने लगा है। सब्जियों और सब्ज़ मसालाबाद की बात की जाए तो उसकी कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है, जो कि गरीब दिहाड़ीदार की पहुंच से दूर होता जा रहा है। गरीब दिहाड़ीदार तबका फाकों पर मजबूर हो चुके हैं और अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाने से भी कासिर हैं। इनकी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा गरीब तबका पर रहम किया जाए और रोज़मर्रा की कीमतों को कम किया जाए ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट पाल सके। जी तो रुपए जनाब किलो फरोख्त हो रहा है। बीफ जेड़ा है 800 रुपए है। उस तो इलावा तुसी चेक कर लो दूसरा मटन है 1600-1700 है। उस तो इलावा DAP खाद जेड़ी है वो तुसी वेख लो, वो मेरे ख्याल 11,000 रुपए की फरोख्त हो रही है। इस तो इलावा यूरिया जेड़ी ओदी ब्लैक ते फरोख्त जा रही है। सब्जियां तुसी मतलब चेक कर लो, कोई भी सब्जी खरीदनी है 150 to 200 रुपए जनाब उस तो कम वो नहीं मिलनी। उस तो इलावा फल सेब जेड़े नो 300 किलोग्राम फरोख्त हो रहा है। उस तो इलावा जेड़ा केला है वो 120 तो लेके 150 तक फरोख्त हो रहा है। उस तो इलावा चावल 300 फी किलोग्राम के हिसाब नाल फरोख्त हो रहा है। कोई भी दाल असी खरीदनी है तो 350 to 400 रुपए तक सन मतलब उसका किलो मिलना। मोरो में मिल मालिकान ने असिस्टेंट कमिश्नर के ऐलान को हवा में उड़ा दिया। एक दिन सस्ते आटे का स्टॉल लगाने के बाद ताले लगा दिए गए। मजीद देखते हैं अली दो सोलंगी की ये रिपोर्ट। सिंध भर की तरह मोरो में भी आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। मोरो में भी असिस्टेंट कमिश्नर मोरो हसन जफर के सस्ते आटे के स्टॉल लगाने के ऐलान को बासर मिल मालिक ने हवा में उड़ा दिया।
गुज़श्ता रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर ने मिल मालिक को बुलाकर हिदायत की कि आपको सस्ता आटा बेचना है, लेकिन बासर मिल मालिक ने असिस्टेंट कमिश्नर मोरो की एक भी ना सुनी। मजबूरन असिस्टेंट कमिश्नर को सस्ते आटे के स्टॉल को ताले लगाने पड़े। सस्ते आटे के स्टॉल पर ताले देखकर आटा लेने के लिए आए हुए लोगों ने एहतजाज करते हुए कोहिनूर न्यूज़ को बताया कि दो दिन के बाद बंद ताला लगा के छोड़ा है। हम गरीब लोग कहाँ से जाऊं? हम भूख मरे, एक दिन आटा देते हैं, 10 दिन गुम हो जाते हैं, आटा नहीं मिल रहा, ताला लगा दिया है। हम गरीब लोग कहाँ से जाएं? असां गरीब सफ़ा हिकिड़ो मुंहिंजो पुटड़ो जवान 5 महीना त गुज़ारियो आहे, ॿी नूंहं गुज़ारे विया, हुनखे 7 बचा आहिनि, पुटु गुज़ारियो आहे, हुनखे 4 बचा आहिनि। असां सफ़ा गरीब ऐं परेशान आहियूं, अटे जे लपल आहे, सूरन में आहियूं असां। हुकूमत सिंध से हम अपील करते हैं, जो आज ही हमारा पेट खाली है तो आगे क्या करेंगे, इनके बाद हमारे साथ क्या होगा, और हमारे को इंसाफ दिया जाए, आटा दिया जाए, नहीं तो हम एहतजाज करेंगे। हम और मर जाएंगे भूखे ही। हमारे शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटा सस्ता किया जाए और जगह जगह सस्ते आटे के स्टॉल लगाए जाएं ताकि शहरी आटा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि उमरकोट में आटा बहरान और महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान कोली इत्तेहाद की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने अल्लाह वाला चौक पर धरना भी दिया, जिससे ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों की लंबी लाइन लगी। मुजाहिरीन का सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहना था कि गरीब महंगाई की चक्की में पहले ही पिस रहा था, अब आटे का बहरान पैदा करके मजदूर तबके को फाका कशी पर मजबूर कर दिया गया है। मुजाहिरीन ने आटे समेत रोजमर्रा के शेख और नोश की कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया है। नारंग मंडी में राजपा की सड़क को पुख्ता बनाने के जारी मंसूबा को रोकने पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। तलबा और तालिबात की भी एहतजाज में भरपूर शिरकत। मजीद जानते हैं कमर गोलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी के यूनियन कस्बों करियाल कला में गंदोबस्त हुआ स्टाफ की पटरी, जो हज़ारों अवाम और नन्हे मुन्ने तलबा तालिबात की वाहिद गुजरगाह है को पुख्ता बनाने के जारी मनसूबा को बासर अफराद की जानब से ज़बरदस्ती रोकने, सियासी मुदाखलत और इंतकामी कार्रवाई करने पर मुश्तइल अवाम का रोड ब्लॉक करके बासर अफराद के खिलाफ शदीद एहतजाज, हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेने और रोड को पुख्ता बनाने का मुतालबा किया गया है और कहा गया है कि चौधराहट के तनाज़े पर दर्जनों देहातों के अवाम को ज़लील रसवा किया जा रहा है। हुकूमत नोटिस ले, 60 फुट रोड बन चुका है, बाकी रोड को फौरी तौर पर बनाया जाए। मज़ीद जानते हैं मुतासरीन नन्हे मुन्ने बच्चों की ज़बानी। जी ज़्यादा ख़राब है, जब बारिश होती है और इधर से सारा ख़राब हो जाता है, और जब हम स्कूल में आते हैं तो हम गिर जाते हैं और हमारी सारी यूनिफॉर्म गंदे हो जाते हैं। मेहरबानी फरमा कर उगाड़ा में भी पोलियो के खात्मे के लिए 5 रोजा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर इरफान काठिया ने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर 5 रोजा कौमी पोलियो मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा कि महकमा सेहत की टीमें पूरे इजला में घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे और आंखों की बिनाई से बचाने के लिए विटामिन ए की कैप्सूल भी देंगे। दूसरी तरफ पीर महल में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। पोलियो मुहिम का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर इरफान माटा ने बच्चों को कतरे पिलाकर किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि 5 साल तक के हर बच्चे को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो टीमें घर घर जाकर जबकि स्कूलों, बस अड्डों और दीगर मुकामात पर भी कतरे पिलाएंगी। उन्होंने कहा कि पोलियो टीमें मुकर्ररा हदफ को 100% मुकम्मल करेंगी। चुबारा में भी 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज असिस्टेंट कमिश्नर अफजल शराजी ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। मजीद अहवाल जानते हैं उमर अता जोया की इस रिपोर्ट में। आपको एक बार फिर बताएं कि चौबारा में भी 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज असिस्टेंट कमिश्नर अफजल शराजी ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। सीपीओ मुल्तान शाकिर हुसैन दावर ने थाना मुजफ्फराबाद के इलाके में वाक़या चाइनीज कैंप का दौरा किया। सीपीओ मुल्तान ने कैंप के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरों की कारकर्दगी देखी और चीनी इंजीनियर्स की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जरूरी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मुल्क की तमीर और तरक्की के लिए काम करने वाले गैर मुल्की बाशिंदों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है।
उन्होंने चीनी बाशिंदों की हिफाजत पर मामूर पुलिस अफसरान को अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी के साथ अंजाम देने की भी हिदायत की। कश्मीर में हाथ से बनाई जाने वाली मसनूआत की दुनिया भर में पजीराई। लकड़ी से तैयार किए जाने वाले सोफे और बेड्स अपनी मिसाल आप हैं। मजीद देखते हैं गुलाम मुर्तजा मजारी की रिपोर्ट। कदीमी दौर से जदीद दौर तक हैंडीक्राफ्ट भी अपने तारीख की पहचान रही। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के संगम पर मौजूद वादी मेहरान शहर कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट का बड़ी नफासत के साथ तैयार किया जाता है। कश्मीर में लकड़ी से उम्दा तरीके से नक्श व निकार बनाकर फर्नीचर, चारपाइयों, सोफे, झूले और दीगर घरेलू इस्तेमाल की चीजें भी। हम जेको पिया सॼा बहितरीन विच बहितरीन पिया पूरे सिंध पूरे पाकिस्तान बैरून मुल्क भी सॼा सामान इहो वेंदे। या सॼा सामान जेको पिया जनरी दा मशहूर पिया सोफ़ा सेट, खटा वग़ैरह, पलंग आहिनि पे या कोई न्याणी दे ॾाज जा सामान भी सॼा तैयार किया वेंदे अथई सामान। ऐं उहे जेके उखली मूली वग़ैरह आहे पई, मानी थपड़ा आहे, ॾोई मंदड़ा, सोटी, तीली वग़ैरह जेको भी सामान है पिया तैयार थींदे। असां इथां ई जेको पिया खटे वणण वाले भी आहिनि पे, खटे फिटिंग करण वाले आहिनि पे, पर असांजे मुआवज़ा जेको पिया सफ़ा घटे पिया। जेकी महीना ते पई उहा महीना ते कोन मिलंदी। असां इहो ई हुकूमत सिंध को गुज़ारिश करेसूं कि असांजे ई कम को तवज्जो ॾिनी वञे, असांखे मुआवज़ा ॾिता वञे। मेहनत से बनाई जाने वाले सकाफती हैंडीक्राफ्ट खरीदने के लिए मुख्तलिफ शहरों से लोग शौक से खरीदारी करने के लिए कश्मीर हैंडीक्राफ्ट के दुकानों का रुख करते हैं। लोग लकड़ी से तैयार होने वाले हैंडीक्राफ्ट का सामान दोस्त व अहबाब को तोहफे के तौर पर भी देते हैं। वो ये सामान बच्चों के जहेज पर भी दिया जाता है। तो यही कहना था, मेहनत ज्यादा है लेकिन हमें मुआवजा कम मिलता है। इस्लाम रहती दुनिया तक गालिब रहेगा। दीनी मदारस इस्लाम फैलाने का वाहिद और बेहतरीन जरिया है। इन ख्यालात का इजहार मरकजी मजलिस तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के मरकजी सदर मुफ्ती इम्तियाज मरवत ने दारुल उलूम रहमानिया सराय नौरंग में मुनक्किदा सालाना जलसा दस्तारबंदी से खिताब करते हुए किया। इनका मजीद अहवाल जानते हैं लकी मरवत से शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। मरकजी मजलिस तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के सदर मुफ्ती इम्तियाज मरवत ने कहा है कि इस्लाम रहती दुनिया तक गालिब रहेगा। दीनी मदारिस इस्लाम फैलाने का वाहिद और बेहतरीन जरिया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने दारुल उलूम रहमानिया सराय नौरंग में मुनक्किदा सालाना जलसा दस्तरबंदी से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर तहसील सराय नौरंग के चेयरमैन अजीजुल्लाह खान मरवत, मरकजी तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत के सूबाई नायब सदर मौलाना अब्दुल हमीद कुरैशी, जुमाती इस्लामी बनी के मौलाना कुदरतुल्लाह, जामा हाजा के मुहतमिम मुफ्ती इरफानुल्लाह, जुमाती इस्लामी की जिली जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल खान मरवत, मिंबर जुमाती इस्लामी सूबाई शोरा हाजी अब्दुल समद खान और जामा हाजा के नाज़िम मालियात मौलाना बशीर अहमद हकानी समेत उलमाए कराम, तलबा और आम शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। फारिग अल तहसील हाफिज कराम की दस्तरबंदी की गई और मुबारकबाद देते हुए कुरानी अहकाम की मुताबिक जिंदगी गुजारने की ताकीद की गई। मुकर्ररीन का कहना था कि अल्लाह पाक के अहकामात और पैगम्बर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके अपनाना असल दीन है। हमारी बस्ती की बुनियादी वजह निज़ामी जिंदगी, अदालती निज़ाम और पार्लियामेंट में कुरान पाक पर फैसला ना होना जो इंतहाई अफसोसनाक है। जुमात इस्लामी मुल्क में इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए जदोजहद कर रही है और इंशाल्लाह एक दिन जरूर आएगा जब निज़ामी जिंदगी, अदालती निज़ाम और पार्लियामेंट में फैसला कुरान पाक और पैगम्बर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीकों पर होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बहावलपुर में भी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज रईस ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर भारत जाहिद परवेज रईस ने बहावलपुर अस्पताल के आउटडोर में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव कतरे पिलाकर
बहावलपुर जिले में पोलियो से बचाव की कौमी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर अंजम इकबाल, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सईद तनवीर शाह, DHO प्रोविडेंट मेडिसिन डॉक्टर खालिद महमूद अराइन, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH डॉक्टर खावर जिया मलिक, WHO के नुमाइंदा डॉक्टर शिराज और दीगर मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पोलियो से बचाव मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र का एक बच्चा भी पोलियो की खुराक से महरूम न रहे। उन्होंने कहा कि पोलियो से बचाव की टीमों के इरकान जज्बा हब वतनी से सरशार होकर अपने फ़राइज़ अदा करें ताकि बच्चे की जिस्मानी मजबूरी से महफूज रह सकें। उन्होंने कहा कि बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने के साथ फिंगर मार्किंग की जाए। CEO हेल्थ डॉक्टर अंजम इकबाल ने बताया कि 16 जनवरी से 20 जनवरी तक पोलियो से बचाव की कौमी मुहिम के दौरान जिला भर में 5 साल तक की उम्र के 8 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद अराई ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। रहीम डॉक्टर खालिद महमूद अराई, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज बहावलपुर। तो पूरे मुल्क की तरह क्योंकि NID है तो आज हमारे ज़िले में भी पोलियो कैंपेन शुरू है और पहला दिन है पोलियो कैंपेन का। इसमें हमारा जो टारगेट है वो हमारा 8,07,898 बच्चे हैं। तो इंशाल्लाह उनको हमारी जो मोबाइल टीमें हैं वो 3,168 मोबाइल टीमें हैं और उनको 120 यूनियन काउंसिलों में हमने 122 UCMO लगाए हुए हैं और UCMO के अंडर हमारे 639 एरिया इंचार्ज हैं। और तो हर सेंटर पे एक हमारी टीम बैठी है, तो फिक्स टीमें हमारी 195 हैं। तो ट्रांजिट टीमें 136 हैं जो मुख्तलिफ स्टॉप्स पे, चौक में और उधर मुख्तलिफ जगहों पे बैठी हैं, जिनके साथ एक पुलिस वाला भी होता है जो DC साहब की तरफ से हमें पुलिस वाले दिए गए हैं। और ये हमारी पूरी जो कैंपेन है ये हर घर में हमारी टीम जाएगी और हर एक दिन से लेके 5 साल तक के हर बच्चे को कतरे पिलाए जाएंगे। तो मेरी जो बहावलपुर की तमाम आवाम से इल्तमास है कि इस कैंपेन के दौरान अपने हर बच्चे को पोलियो के 2 कतरे पिलवाएं। और इस दफ़ा पोलियो के साथ साथ विटामिन A भी दी जा रही है और विटामिन A का बच्चों पे बहुत अच्छा असर होता है, उनकी जहनी नशोनुमा पे, उनकी। हरिपुर में मुमताज मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मोहिमन के कालिमों के मजमूए शान कई की तकरीबें रोनमाई। हर मुकातबे फिक्र की सरकदा शख्सियात ने शिरकत की। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर मुमताज मजहबी स्कॉलर और जामे हरिपुर के शोबा उलूम इस्लामिया के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मोहिमन के कालमों के मजमूए शान की तकरीब रुनमाई हकीम अब्दुल सलाम लाइब्रेरी के हाल में मुनक़िद हुई, जिसमें इल्मुआद, कानून, तिब, तालीम, तहकीक, सहाफ़त समेत मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के हल्कों की सरकर्दा शख्सियात, ख़वातीन व तलबा तलबात ने कसीर तादाद में शिरकत की और डॉक्टर मोहिमन को इनकी नई किताब शान की तकरीब रुनमाई पर दिली मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। जबकि तकरीब से मुमताज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर सुनैन रज़ा तराबी, प्रोफेसर नासिर दाऊद, मारूफ माहिर तालीम शौकत महमूद, प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के ज़िली सदर बिशारत नवाज अब्बासी, काजी मोहम्मद शहीद, प्रिंसिपल सैयद अजहर हुसैन शाह, सदर शीमेल साइमा शौकत के अलावा सायरा मजीद, सैयद करीम हैदर शाह व दीगर ने भी खिताब किया। मुकर्रीन ने अपने खिताब में प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मोहिमन की तालीमी और समाजी कसीरलजहती खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया और इन्हें हर दम मुआशरती इस्लाह के लिए तहरीर व तकरीर के प्लेटफार्म से शऊर बेदारी के लिए भरपूर किरदार अदा करने वाला मुसल्लह करार दिया, जो खुलूस दिल से मुल्क व मिलत को दरपेश मसाइल ज़ेर बहस लाकर मुल्की व कौमी तरक्की के लिए इनके हल भी तजवीज़ करता है। मुकर्रीन ने फरजूदा निज़ाम तालीम में हंगामी तब्दीलियों को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार दे देकर अरबाब इख्तियार की तवज्जो इस नाज़ुक और अहम तरीन मसले की जानिब तवज्जो मजबूत करवाई और हकीकी तब्दीली के लिए फ़र्द की ज़ाती इस्लाह और रवैयों की इस्लाह पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत पर जोर दिया। जोहर टाउन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जोन 4 के अफसरान का दोहरा मेयार। पाइन एवेन्यू रोड पर एक शादी हाल को मस्मार, जबकि छतरी चौक के सामने दूसरे शादी हाल को छोड़ दिया गया। आपको बताएं कि जोहर टाउन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जोन 4 के अफसरान का दोहरा मेयार सामने आया है। पाइन एवेन्यू रोड पर एक शादी हाल को मस्मार कर दिया गया है, जबकि छतरी चौक के सामने दूसरे शादी हाल को छोड़ दिया गया है। आपको बताएं कि जोहर टाउन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जोन 4 के अफसरान का दोहरा मेयार सामने आ चुका है। पाइन एवेन्यू रोड पर एक शादी हाल को मस्मार, जबकि छतरी चौक के सामने दूसरे शादी हाल को छोड़ दिया गया है। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर शहबाज काजमी से।
जी बिल्कुल, आज DGLDA की हदायत पर गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन जोहर टाउन के इलाके में किया गया है। ऑपरेशन जोन 5 की तरफ से किया गया है, लेकिन जोन 5 का दोहरा मियाद सामने आया है। पाइन एवेन्यू रोड पर जोहर टाउन पर बनने वाली मार्की को मस्मार कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ ही सामने बनने वाली गैर कानूनी मार्की को छोड़ दिया गया है। ये दोहरा मियाद सामने आया है जोन 4 का। ये ऑपरेशन DGLDA की हदायत पर किया गया था, लेकिन इसके अलावा जोन 4 की तरफ से और भी गैर कानूनी तमीरात को मस्मार कर दिया गया है, लेकिन छोटे वाली मार्की को मस्मार कर दिया गया है, जबकि सामने वाली बड़ी मार्की को छोड़ दिया गया है। ये जोन 4 के लिए लम्हा फिक्रिया है। ऑपरेशन में इन्फोर्समेंट। अच्छा शिबाज, यहाँ पर ये बताइएगा, शिबाज मुझे यहाँ पर ये बताइएगा कि जिस शादी हाल को छोड़ा गया है वो किस शख्सियत का है? जी वो सियासी शख्सियत इसमें इन्वॉल्व है और उस बेस पे इसको छोड़ा गया। इसको मैं आपको बताता चलूं कि 2 दफा पहले इसको मस्मार किया जा चुका है, लेकिन चूंकि ऊपर DGLDA या ऊपर से प्रेशर जब आया तो उसको छोड़ दिया गया। हालांकि जो दूसरा इन्होंने शादी हाल मार्की को मस्मार किया वो बिल्कुल उसके सामने है, उसको छोड़ दिया गया। लेकिन इस दफा जो सामने बिल्कुल बन चुका है, मार्की शादी हाल बन चुका है, लेकिन इसको नजरअंदाज कर दिया गया है इस ऑपरेशन में। जी शिबाज, ये भी बताइएगा कि जिस शादी हाल को मस्मार किया गया है उनकी इंतजामिया की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आया है? जी उनका जिनका मस्मार किया गया उनका ये सामने आया रद्द अमल। उनका शदीद गुस्से गम की रह पाई जा रही है। उनका कहना यह है कि हम ये दोहरे मेयार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि अगर हमारे शादी हाल गैर कानूनी था उसको मस्मार किया गया है, लेकिन सामने वाले शादी हाल मार्की को नजरअंदाज क्यों किया गया है। उनका ये भी कहना था कि हम DGLDA और चीफ टाउन प्लानर के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट भी दायर करेंगे। शहबाज काज़मी, आपने तफसील लगा किया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर में सदादे पोलियो मुहिम का आज से बाकायदा आगाज कर दिया गया। इंतजामी अफसरान और असिस्टेंट कमिश्नर पोलियो वर्कर्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए फील्ड में दौरे करने लगे। तफसीलात जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से बाकायदा आगाज कर दिया गया। पोलियो मुहिम 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक जारी रहेगी। 6300 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर पोलियो के कतरों के साथ साथ विटामिन ए के कतरे भी पिला रहे हैं। 21 लाख 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने का हद पूरा किया जाएगा। इंतजामी अफसरान और असिस्टेंट कमिश्नर्स को पोलियो वर्कर्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए सख्त हदायत जारी की गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नाजिया मोहल UC 109 में टीम नंबर 9 और 7 की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए पहुंच गई। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन इब्राहिम अरबाब ने UC 115 वादत कॉलोनी नक्शा स्टाफ पर पोलियो वर्कर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड हामिद रशीद ने तहसील रायवंड के इलाके में पोलियो वर्कर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इमरान सफ्तर ने UC 52 में टीम नंबर 107 ग्रीनलैंड हाउसिंग स्कीम में कारकर्दगी का जायजा लिया। अफसरान ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो और विटामिन ए के कतरे भी पिलाए। डोर मार्किंग, फिंगर मार्किंग, टैली शीट्स का जायजा लिया गया। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। DC लाहौर का कहना था वालदैन पोलियो टीम के आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने शाहदरा मल्टी लेवल फ्लाईओवर की तामीर के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया है। शाहदरा मल्टी लेवल फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर 8 अरब 90 करोड़ रुपए लागत आएगी, जबकि यह मंसूबा 10 माह की मुद्दत में मुकम्मल होगा। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि 27 कनाल अराजी पर तामीर होने वाला यह मल्टी लेवल फ्लाईओवर फन्ने तामीर में अपनी मिसाल आप होगा। शाहदरा मल्टी लेवल फ्लाईओवर की तकमील से लाहौर इस्लामाबाद GT रोड पर सफर करने वाले लाखों मुसाफिर मुस्तफिद होंगे और शाहदरा पुराना रावी, कोट अब्दुल मालिक, काला शाह काकू, रिंग रोड की गुंजान आबादियों के लाखों मकीनों को आमदोरफ्त में बेपनाह सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि शाहदरा मल्टी लेवल फ्लाईओवर मंसूबे में पैदल चलने वाले लोगों के लिए वॉक वीजा और पुल बनाए जाएंगे। सर्विस रोड के साथ साथ निकासी आब का सिस्टम भी बनाया जाएगा। मुल्क भर में ANF का मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद जानते अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदील अहमद से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी मोहम्मद अदील, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शारजा जाने वाले मुलजिम के पेट से 47 हीरोइन भरे कैप्सूल बरामद करके 4 सदा का रैशी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। ANF और ASF की
मुश्तरका कार्रवाई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए फ्लाइट नंबर 4506 से बेशक जाने वाले मुलजिम से 62 ग्राम चरस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर ली गई है। बरामदशुदा चरस 7 हलवे के डब्बे में सोन हलवे के डब्बे में छुपाई गई थी। हरीपुर का रिहायशी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। CMX चौक अटक के करीब कार्रवाई करते हुए कार से 7 किलो 200 ग्राम चरस बरामद की गई है। और इसी वाले से अगर बात की जाए तो मोटरवे पार्क पेशावर के करीब कार्रवाई करते हुए 6 किलो चरस बरामद की गई है। ANF और ASF की खबर में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए प्लास्टिक के थैलों से 23 किलो 50 ग्राम चरस बरामद करके मंशियात के खिलाफ जो है ना वो मुकदमा दर्ज किए गए हैं। लोअर गुलबर्ग से 3 वाकया निजी कोरियर ऑफिस में बरतानिया भेजे जाने वाले पार्सल से 295 ग्राम हेरोइन बरामद करके मंशियात कपड़ों में छुपाई गई थी, जिसका मुकदमा दर्ज करके और मुलजिमान को नामालूम अफराद को जो है ना वो जगह पर मुंतकिल करके उनके साथ तफ्तीश जारी है। जी मोहम्मद दीदी, आपने तफसील लगा किया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के ज़रिए एहतमाम एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सियासी और समाजी शख्सियात समेत ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी डेरा इस्माइल खान के ज़ेर इंतज़ाम मुल्क में जारी मुआशी बहरान और होशरुबा महंगाई के खिलाफ एक रैली का इनेकाद किया गया, जो हक नवाज शहीद पार्क से निकलकर बाजार तोपावाला, अंदरूनी शहर रहीम बाजार, घास मंडी और चुगल्ला पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सियासी समाजी शख्सियात समेत अंजुमन ताजरान डेरा, वकला बरादरी, जमात इस्लामी के अहदेदारान और सिविल सोसाइटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरुका ने हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। रैली में शरीक अमीर जमात इस्लामी डेरा के सदर सलीमुल्लाह अरशद का कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहना था कि जमात इस्लामी ही वाहिद ऐसी जमात है जो मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। आज हमारा जो एहतजाज है ये अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब की कॉल पर किया जा रहा है और ये पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो महंगाई है, बदअमनी है और एक बहरानी कैफियत है, उसके लिए ये फैसला हुआ कि हम आवाम के पास जाएं और इस वक्त इस पूरी कौम को और आवाम को समझाएं कि इस वक्त PTI और PDM एक सिक्के के दो रुख हैं और वो एक ही चीज़ हैं। PTI वाले और PDM वाले, इनमें कोई फ़र्क नहीं है और यही इस वक्त मुल्क और कौम की तबाही का सबब बने हुए हैं। आज कराची के अंदर भी इंतखाबात हो रहे हैं बल्दियाती, और इस वक्त वहाँ PDM और PTI पहले एक थे, फिर मुखालिफ हो गए और MQM ने बाइकाट किया और उनको नज़र आ रहा है कि हाफिज़ नईमुर रहमान मुस्तकबिल का मियार है। हम दीगर अहदेदारान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने आवाम को 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। और इस वक्त हम समझते हैं कि सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त पाकिस्तान में आवाम जो भुगत रही है वो महंगाई का है। रैली के शुरुका ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत को सिर्फ इक़्तिदार। गाजी में SDPO सर्कल मोहम्मद यासीन जंजोआ का थाना नाड़ा अमाजई का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया गया, पुलिस एहलकारों के मसाइल दरियाफ्त किए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मशवानी की इस रिपोर्ट में। DPO हरीपुर इमरान शाहिद की खसूसी हिदायत पर SDPO सर्कल गाजी मोहम्मद यासीन जंगजुआ ने थाना नाड़ा अमाजई का विजिट के दौरान थाने का रोजनामचा, मालखाना, कोत, दीगर शोबाजात का मुआयना किया। SDPO ने थाने में मौजूद मोरद स्टाफ, दीगर अफसरान, पुलिस से मसाइल से मुतल्लक भी दरियाफ्त किया और थाने का रिकॉर्ड और मौसूल होने वाले पब्लिक शिकायत पर पुलिस कार्रवाई का भी जायजा लिया। इस मौके पर SHO थाना नाड़ा अमाजी जुल्फिकार खान ने SDPO को थाने की हदूद में क्राइम के हवाले से तफसीली ब्रीफ किया। SDPO ने थाना के जुमला स्टाफ को हिदायत देते हुए कहा है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र अपनी हिफाजत के लिए जैकेट, हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। आवाम के साथ अच्छे इखलाक और शिकायत। कोटकी के नीची कंप्यूटर सेंटर का इंटेक्स में मेगा टेस्ट और रिजल्ट अलाउंस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पोजीशन हासिल करने वाली तलबा में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में डायरेक्टर मोहम्मद इकराम राजपूत, प्रिंसिपल अब्दुल मालिक राजड़ी, अब्दुल रज़ाक कराई और मुख्तलिफ स्कूलों के प्रिंसिपल और उस्ताज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आपको बताएं कि कोटकी के निजी कंप्यूटर सेंटर का इंटेक्स में मेगा टेस्ट और रिजल्ट अलाउंस के
حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں پوزیشن حاصل کرنے والی طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے. تقریب میں ڈائریکٹر محمد اکرام راجپوت، پرنسپل عبد المالک راجڑی، عبدالرزاق ارائن اور مختلف سکولوں کے پرنسپل اور اساتذہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی. پتوکی میں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی جانب سے ننجی پیپر ملز میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں فیکٹری ورکرز کو ٹریفک قوانین کے حوالے سے خصوصی آگاہی فراہم کی گئی. اس موقع پر ڈی ایس پی موٹر ریاض ٹوگر نے شرکا کو خصوصی آگاہی فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ حادثات میں 80% موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں. سیمینار کا بنیادی مقصد قیمتی جانوں کا ضیاع اور بڑھتے ہوئے روڈ حادثات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنا ہے. مغلوڈ گنج شہر سے گزرنے والی نہر فوڈ واک کا پل انتہائی شکستہ حالی کا شکار ہے. شہریوں کا شدید احتجاج کرتے ہوئے کہنا ہے کہ انتظامیہ کی عدم دلچسپی کا باعث پل خونی بن چکا ہے اور یہاں بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، لیکن تاحال اس کی تعمیر پر توجہ نہیں دی جا رہی. شہریوں نے مطالبہ کرتے ہوئے حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ شانگلہ کی وادی شاہپور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا شمولیتی پروگرام منعقد کیا گیا. سابق ممبر صوبائی اسمبلی ڈاکٹر افضل الملک خان نے خصوصی خطاب کیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے غازی احمد کی اس رپورٹ میں. شانگلہ کی وادی شاہپور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا شمولیتی پروگرام منعقد کیا گیا. شمولیتی پروگرام میں ڈاکٹر نجیب احمد اپنے ساتھیوں اور خاندان سمیت شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قافلے میں شامل ہو گئے. شمولیتی تقریب سے سابق ممبر صوبائی اسمبلی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ڈاکٹر افضل الملک خان و دیگر ضلعی قائدین نے خطاب کیا. تقریب میں سینکڑوں کی تعداد میں جیالوں نے شرکت کی. منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر افضل الملک خان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی حقیقی معنوں میں جمہوری جماعت ہے جو سول بالادستی پر یقین رکھتی ہے. پیپلز پارٹی کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہو شامل ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت اور آئین کی بقا کے لیے لازوال قربانیوں کی داستان رقم کی ہے. انہوں نے کہا کہ شانگلہ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں مزید شمولیتی پروگرام منعقد ہوں گے. اب عوام جاگ چکے ہیں اور وقتی مفاد پرست سیاستدانوں کو بھی اچھی طرح جان چکے ہیں. آنے والا دور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا اور عام انتخابات میں بھاری مینڈیٹ کے ساتھ کامیابی حاصل کریں گے. شمولیتی تقریب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر ضلعی قائدین نے بھی خطاب کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ماضی کی طرح مستقبل میں بھی پیپلز پارٹی کے جھنڈے تلے نظریہ اور جدوجہد کے ساتھ سیاسی سفر جاری رکھیں گے. نشے سے انکار کیجیے اور زندگی سے پیار کیجیے. نشوں میں سب سے خطرناک نشہ آئس کا ہے جو ہماری نوجوان نسل کو بڑی تیزی سے برباد کر رہا ہے. مزید اس پر دیکھتے ہیں دھڑکے کی ہمارے نمائندے عبد الوحید سمرو کی یہ رپورٹ. آئس ایک ایسا نشہ ہے جس کے پہلی بار استعمال سے انسان کے اندر خوشی کی ہارمونز انتہائی ایکٹیو ہو جاتے ہیں جس سے انسان انتہائی خوشی محسوس کرتا ہے. آئس کا نشہ 36 سے 32 گھنٹے تک ہوتا ہے اور وہ انسان 72 گھنٹوں تک جاگتا رہتا ہے. پہلی دفعہ انسان کو آئس استعمال کرنے سے جو لذت اور خوشی ملتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان آئس کی ڈوز بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ پہلے والی خوشی محسوس کر سکے. کسی بھی وقت نشے میں انسان کے اندر رشتے کی تمیز نہیں رہتی مگر آئس ایک ایسا خطرناک چیز ہے جو انسان کے وقت کے ساتھ ساتھ آئس انسان کی ہڈیوں کو پکڑ لیتی ہے. تاریخی شہر بھیرا کا اہم ثقافتی ورثہ شیر شاہ سوری جامع مسجد زب و حالی کا شکار. حالیہ کروڑوں کی لاگت سے تعمیر و مرمت کا کام کیا گیا، چند ماہ میں ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. رپورٹ کے مطابق جامع مسجد کی تزئین و آرائش اور تعمیر و مرمت پر 4 کروڑ 35 لاکھ روپے سے لاگت آئی، لیکن چند ہی ماہ کے اندر نقش و نگار کی چمک دھمک ختم ہو گئی اور جگہ جگہ سے اکھڑنا شروع ہو گئی جبکہ دیواروں پر دراریں پڑ چکی ہیں. شہریوں نے ڈائریکٹر جنرل محکمہ سارے قدیمہ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ مسجد کی تزئین و مرمت کے لیے ہنگامی سطح پر اقدامات اٹھائے جائیں. بہاولپور میں سالانہ سائیکلنگ چیلنج 2023 ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. اہلیان علاقہ کی بڑی تعداد نے ایونٹ میں حصہ لیا.
मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की ये रिपोर्ट में। मुझे पापा डिवीजन राजा जिगर अडवाणी ने कहा कि सालाना साइक्लिंग चैलेंज 2023 एक शानदार इवेंट है जिसमें अली ने बॉल फोड़ने जोश और वलवले के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने कहा साइक्लिंग माहौल दोस्त और सेहतमंद जिंदगी के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि बीमारी से महफूज रहने के लिए साइकिल चलाने की तरकीब दी जाए, इससे पेट्रोल के खर्च और गाड़ियों की देखभाल के अखराजात की बचत होगी और माहौल पुरफिजा रहेगा। कमिश्नर बाबर डिवीजन ने साइकिल रेस में हिस्सा लेने वालों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा साइकिल चलाना काबिल फ़ख्र अमल है। नौजवान तलीमी इदारों में जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें क्योंकि साइकिल सेहतमंद माहौल दोस्त सवारी है। उन्होंने कहा कि सालाना साइकिल चैलेंज को कामयाब बनाने पर ज़िलाई इंतजामिया असिस्टेंट कमिश्नर बालपुर सिटी डॉक्टर अनवर फातिमा, असिस्टेंट कमिश्नर बालपुर सदर फैसल अहमद, महकमा स्पोर्ट, महकमा पुलिस, मीडिया निमिदगान, महकमा तल्लुकात आमा, रेस्क्यू 1122, BWMC, सिविल डिफेंस, बॉयज स्काउट्स, महकमा तलीम, महकमा सेहत और दीगर इदारों की काविशों को खराज तस्लीम पेश किया। इस मौके कमिश्नर बालपुर डिवीजन राजा जगीर अनवर ने साइकिल रेस की कैटेगरियों अंडर 14 साल से 45 साल तक की उम्र के अफराद की रेस और 45 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के दरमियान साइकिल रेस में पोजीशन हासिल करने वालों को साइकिलों को तोहफ़ और से नवाजा और उन्हें मुबारकबाद पेश की। सूफियत थी, फिर DPO भावलपुर, हमारे साथ सिविल डिफेंस का अमला, हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस, हमारे साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला, हमारे साथ दीगर तमाम महकमा जात जिसमें BWMC भी मौजूद है, जिसमें और भी एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे साथ सिविल डिफेंस, बेशुमार इदारे हैं जिन्होंने आज इसको विच हैव मेड इट हैपन। तो यहाँ पे दो बातें करना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं थी जिसकी सिर्फ एक एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है। ये बुनियादी तौर पे एक मैसेज भी था जो डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देना चाह रही है और वो ये है कि साइकिल कल्चर को वापस लाया जाए। विविडली रिमेंबर while I was growing up in a cantonment in the northern Punjab, मैं अपने स्कूल साइकिल पर जाया करता था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे घर से स्कूल का फासला तकरीबन 30-35 मिनट्स होता था और ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथ के तमाम क्लास फेलोज वी यूज्ड टू टेक प्राइड और बल्कि हमारे यहाँ आजकल तो गाड़ियों का कंपटीशन होता है कि किसकी गाड़ी ज़्यादा कीमती है या किसकी। DIG इन्वेस्टिगेशन अतहर इस्माइल के हुक्म पर सदर डिवीजन पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ चोरी, डकैती, राहजानी, कत्ल और भत्ताखोरी जैसे संगीन जराइम में मुलविस 35 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जा से लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स और दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं? देखें, आज SP इन्वेस्टिगेशन सदर ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिनका नाम है इर्तजा कमील, जिन्होंने जो है वो सिटी डिवीजन के सदर डिवीजन के तमाम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को हुक्म दिया था कि मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो काम किया जाए। तो उसी पर जो है वो सबसे पहले बैनर ज़िलाई चोर गैंग के मुल्जमान समेत अंधे कत्ल, भत्ता वसूली और डकैती व चोरी की वारदातों में मुलविस जो है 35 मुल्जमान को गिरफ्तार करके जो है वो मीडिया के नुमाइंदों के सामने पेश किया गया। और इसी तरह से सरकारी मलाक की चोरी समेत दर्जनों वारदात करने वाला बैनर सुबाई जो है वो चोर गैंग भी गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले मुल्जमान के हवाले से अगर बात की जाए तो बैनल सुबाई 6 रुकनी गैंग के मुल्जमान में इकराम, बिलाल और अफजाल उर्फ लजपाल जो है वो शामिल है। मुल्जमान ने जो है वो करोड़ों रुपए मालियत की तकरीबन 10 टन तार, बार, मोटरवे, मजदा, मोटरसाइकिल, दिगर जो है वो चीजें चोरी करके फरोख्त की थी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और मुल्जमान के खिलाफ जो है वो लाहौर से बाहर जिस तरह से सिंध, बहावलपुर, मुल्तान, हाफजाबाद, शेखुपुरा और लाहौर के मुख्तलिफ थानों में चोरी के मुकदमात भी दर्ज जो है वो मुकदमे ट्रेस किए गए थे। इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन रायविंड पुलिस की बात की जाए तो उन्होंने मुख्तलिफ मालूमात समेत जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो मुल्जमान को गिरफ्तार किया। और दूसरी जानिब मैं बताते चलूं कि बहन की शादी जो है वो एक मुल्जिम का कहना था कि मेरी मर्जी से होनी चाहिए, लेकिन उसके घर वाले नहीं इस बात से मान रहे थे, जिस पर जो है वो मुल्जिम ने अपनी बहन और अपनी माँ को जो है वो गले में रस्सी डालकर कत्ल कर दिया था और मौका से फरार हो गया था। और इसी तरह से कामरान ने अपनी 55 साला माँ सुगरा बीबी और 18 साला बहन नूर बीबी को भी कत्ल किया था। मांगा मंडी के हवाले से देखा जाए तो मांगा मंडी पुलिस ने जेवर हथियाने के लिए अपनी हमसाई के अंधे कत्ल में मुलविस 5 मुल्जमान को भी गिरफ्तार किया है। जिस तरह से मकतूला परवीन बीबी अपनी हमसाई जाहिदा परवीन के घर अपनी उधार दी हुई रकम वापस लेने गई तो वहां पर जाकर देखा कि परवीन बीबी ने कीमती बालियां और लाकट पहने हुए हैं, जिस पर जो है वो उसका दिल बेईमान हो गया। उसने अपनी बेटी, बहू और अपने बच्चों की मदद से जो है वो उनको कत्ल कर दिया और वहां से सामान लेकर रफू चक्कर हो गई, जिस पर मनाजरा बहू थी। इसके अलावा आमना और बेटों अली रजा
اور कल्ब बाज की मदद से जो है वो परवीन बीबी को जो है वो कत्ल किया गया था। उसके दरिंदा सिफ्त जो है वो मुलजमान भी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि मेके से मिलने वाली जायदाद से हिस्सा क्यों नहीं दिया, इसी पर जो है वो बीवी को कत्ल करने वाला शोहर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मकतूला साबरा बीबी को उसके शोहर गुलाम रसूल ने कुल्हाड़ियों के वार करके जो है वो कत्ल किया था, जबकि मुलजिम अपनी बीवी से उसके मेके से मिलने वाली जायदाद से जो है वो हिस्सा मांग रहा था। लेकिन बात की जाए अगर नवाब टाउन पुलिस की, तो नवाब टाउन पुलिस ने जो है वो होटल से बता और 50 लाख रुपए बता और फ्री खाना खाने वाले 3 मुलजमान को भी गिरफ्तार किया है। मुलजमान में अलीम, अदील और हैदर शामिल हैं, जिस पर जिस तरह इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि मुलजमान जो है वो साबका रिकॉर्ड याफ्ता और लोगों से बजरिया टेलीफोन बता मांगते थे, ना देने वालों को फायरिंग का निशाना बनाते थे और ये होटल से पिस्टल के दम से जो है वो फ्री खाना भी खाते थे। लेकिन पुलिस ने तमाम मुलजमान को गिरफ्तार किया। सीसीपी लाहौर और डीएजी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से तमाम पुलिस अफसरान को जो है वो नकद इनाम और सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। वसीम साबिर, आपने तफसील लगा किया, आपका बेहद शुक्रिया। सिंध रेंजर्स और पुलिस की इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई। कराची के इलाके औरंगी टाउन से डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से डकैतियों में इस्तेमाल होने वाला चोरी का मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया। मजीद देखते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके औरंगी टाउन से डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस मुलजिम जुबैर खान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से डकैती में इस्तेमाल होने वाला चोरी का मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया। तर्जुमान रेंजर सिंध के मुताबिक मुलजिम अपने दीगर साथियों के हमरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और स्ट्रीट क्राइम की 170 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस है, जिसमें मुलजिम ने 250 से ज्यादा मोबाइल फोन और 5 लाख से ज्यादा नकदी छीनने का एतराफ किया है। मुलजिम ने जनवरी 2023 को अपने साथियों के हमरा औरंगी टाउन में डकैती के वारदात की, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें मुलजमान को बआसानी पहचाना जा सकता है। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को बिमा मसरूका मोटरसाइकिल मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। पंजाब पुलिस के ज़रिए एहतमाम अलहमरा हॉल में पहली सूबाई वीमेन पीपल्स पुलिस कॉन्फ्रेंस, चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल और आईजी पंजाब आमिर जुल्फिकार खान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कॉन्फ्रेंस में पंजाब, इस्लामाबाद समेत दीगर सूबों से वीमेन पुलिस ऑफिसर्स के वफूद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मुकर्ररीन ने पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने वाली खवातीन, अफसरान और एहलकार के मसाइल बारे इजहार ख्याल किया। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर स्पीकर और मेहमान खुसूसी में शील्ड्स और स्पीकर भी तकसीम किए गए। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान ने कहा, खवातीन पुलिस के मसाइल के हल के लिए सूबाई वीमेन पुलिस कॉन्फ्रेंस का इंतकाद खुश आइंद है। खवातीन पुलिस अफसरान और एहलकारों के मसाइल के हल के लिए पंजाब हुकूमत हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। आईजी पंजाब ने इस मौका पर शुरका से खिताब में कहा, पंजाब में खवातीन की तादाद ज्यादा जबकि पुलिस फोर्स में नुमाइंदगी कम है, इस कमी को जल्द दूर किया जाएगा। पुलिस फोर्स में खवातीन का भर्ती कोटा 25% और SHO में भी जिले के मुताबिक कोटा बढ़ाना चाहिए। खवातीन पुलिस मुलाजिमीन के मसाइल का बखूबी इदराक है, इनके हल के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। सतलुज स्टेडियम सूनिया में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ी जिशान अशरफ की धुआंधार बैटिंग। तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। सतलुज स्टेडियम चूनिया में 5वें सालाना जावेद मुगल मेमोरियल हार्डबॉल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उम्मीदवार MPA PP 178 मियां हम्बल सना करीमी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच गोसिया क्रिकेट क्लब पथो की और पैराडाइज क्रिकेट क्लब फूल नगर के दरमियान खेला गया। टूर्नामेंट में पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन में लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ी जिशान अशरफ की शिरकत ने 4 चांद लगा दिए। जिशान अशरफ ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। यहाँ इज्जत मिलेगी मुझे और मिल भी रही है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत दी है। और बाकी जो यहाँ के प्लेयर हैं उनके लिए बस यही कहूँगा कि पाकिस्तान PSL वगैरह ये सारी जो मैच होते हैं इनमें ये कोई भी खेल सकता है, चाहे वो चूनिया में है, चाहे वो उकाड़ा है, चाहे वो किसी गांव का भी है। सिर्फ अपने आप पर बिलीव करें, अल्लाह पे यकीन रखें, माँ बाप का अदब करें और मेहनत करें। जिशान अशरफ की छक्कों चौकों से भरपूर 128 रन की शानदार इनिंग से शायकीन खूब लुत्फ अंदोज हुए। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी मियां हम्बल सना करीमी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए
नकद इनाम से नवाजा। खिलाड़ियों और सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मियां हम्बल सना करीमी का कहना था कि शहर के नौजवानों को खेल की सरगर्मियां सर अंजाम देने के लिए हर सतह पर न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना है। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।